Good evening. So, in the evening also, we are doing the same topic about, how to win, how to think about winning, not about not losing. Okay. But before that, I want to address another thing because few of you have mentioned stress, challenges, lot of thinking in होता है कि नहीं, दिमाग चलता रहता है, बंद नहीं होता है। मेडिटेशन करने के बाद दिमाग का अपने हैव यू ऑब्जर्व्ड योर माइंड? सुचिता, शुआ, आनंदिता, हाउ डज योर माइंड वर्क? क्या हुआ? Yeah, I can say, the reaction is not that quick after doing the meditation, or maybe uh, fear definitely होता है, stress भी आता है, but then उतना उसका speed कम हो जाता है. I can share one incident. Yesterday had something in office हम्म and got feedback or something which is really not bother me. क्योंकि मुझे हम्म पता था कि वो जो भी बोल रहे हैं इट्स नॉट समथिंग आई डोंट नो मे बी मैनिपुलेटिव है या जो भी है बट हम्म रिएक्शन वाज नॉट देयर या मुझे डर भी ना लगा आई मीन वो एक Hmm. Very nice. See how, that's what I say. Seva is, this is seva. When we are sharing our experience, this is also seva because your experience is going to encourage others to meditate more. Come for satsang, this stay in this group, yeah, work together, read more books or whatever is helping you, right? So nice. Hmm? At the same time, even when you are a meditator, you will see that we will have challenges. We will have, we thoughts. तो कभी कभी बहुतों का बहुत कम होता है, मेडिटेशन करते करते थॉट्स कम हो जाते हैं। एंड बट फिर भी बहुतों को लगता है कि थॉट्स नहीं कम हो रहा है। डिपेंड्स ओके। एंड एज फॉर एग्जांपल माय माय कुंडली इज लाइक दैट इट इन द 12th हाउस, like Jupiter and Chandra, they are sitting together. Hmm? On top of it, Ketu. Okay. So Jupiter and Chandra का ऐसा है कि Jupiter always it presses on the Chandra, and that's why the mind is it takes a lot of time for the mind to settle or to feel peace. तो मेरा बहुत पंगा होता था दिमाग, like अभी भी sometimes it's like and it's a lot of pressure. Life also कभी कभी challenges देते हैं, at the same time it's so, but also the thing is that because Ketu is also in the 12th house, it shows that this pressure on the mind, the restlessness, the pain, the challenges that my mind has, it is taking me towards enlightenment. Okay. But at the same time, because I am a meditator, I am into this path. I cannot say, कि अच्छा, let me suffer, let me suffer. Yeah, whatever is meant to help me heal, transform faster, I'm doing it. But at the same time, I have to find techniques to make sure that मैं जितना कम से कम हो सके सफर करूं. Okay. So what are the techniques? The technique is one is, is like बीइंग अवेयर ऑफ आवर ब्रेथ। हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ मेडिटेशन के टाइम हम अपने ब्रेथ पे अवेयर होते हैं, राइट? उसके बाद हम भूल जाते हैं। बट टू हैव अ लेस स्ट्रेसफुल लाइफ, इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट हम लोग वी आर ऑल्सो वेरी माइंडफुल थ्रू आउट द डे। माइंडफुल का मतलब है कि यू नो लाइक दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये मेरा भी है, यू नो मेरा भी है। जब बट बिकॉज आई लर्न सम टेक्निक्स, आई वर्क ऑन देम। आई ट्राई टू लाइक फॉर मी व्हेनेवर दिमाग बहुत चल चल रहा है, मुझे लग रहा है कि शांति नहीं मिल रही है, बार बार बिना सोचे भी मैं चाहती नहीं हूँ फिर भी ये चल रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने ब्रेथ पे फोकस करना स्टार्ट कर देती हूँ। Okay. And
And mera, I have some techniques. As for example, I say, divine, you enter in me. And when I'm breathing in, I say the divine is, and I feel as if the divine is entering in me and making me completely empty. And when I'm breathing out, I'm releasing everything so that only the divine is left with me. समझ रहे हो? सो लाइक मुझे जैसे मैं बोलती हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ उस मोमेंट में, व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड और बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मैं बोलती हूँ कि आई एम ओनली टेकिंग द डिवाइन इन एंड रिलीजिंग एवरीथिंग विच इज नॉट द डिवाइन. ओके. व्हाट इज नॉट द डिवाइन? व्हाट इज नॉट मी? डिवाइन क्या है? डिवाइन इज नथिंग बट मी. जो मेरा रियल सेल्फ है वही डिवाइन है. राइट. रियल सेल्फ क्या है? प्योर लव, पीस, जॉय, calmness, power. These are all my pure qualities. Huh? And what is not the divine? Stress, tension, thoughts. Thoughts is not the divine. Okay. Thoughts, it's हम जब बॉडी में आते हैं तभी इतना सोचते रहते हैं. Okay. High elevated emotion can be of divine, but normal just thoughts are not of the divine. Okay. So I breathe in, I say I'm breathing in peace, or I'm breathing in the divine, I'm releasing everything. Even people, places, situations that bother me so much, I say I'm releasing all of them. I'm surrendering it to them. You take care of it. I only want you. Okay. Sometimes that's how I work. Okay. And mm, uh, like I'll tell you another thing. Real freedom. Real freedom जो है ना, हम लोग सब लोग freedom चाहते हैं. What do you think? What is real freedom? Hmm? I want to hear one line from each of you. What is real freedom? कौन बोलेगा पहले? Thought. Freedom क्या है? हाँ. Negative thoughts. Anandita is saying negative thoughts. Yes. Suchita has unmuted, or Yeah, yeah. For me, being myself is a real freedom. you being yourself is real freedom. Okay. Then, Neha, what is real freedom for you? Oh, Neha, sometimes she goes away. Shoa, are you there? Yeah, Di. To Yes. me, lately, I feel the real freedom is being able to detach from other people's emotions. Like, even Hmm. when they are sharing, Hmm. I am acknowledging that I should not absorb it because it's their emotions, but I hear them. Hmm. 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 Okay. 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 Yeah, there are so many, same thing can be answered in so many ways. Okay. And all are correct. But do you know there is this small story of, asking, somebody asked Buddha, okay, you are meditating, you are doing all these things, तुम इतना कुछ कर रहे हो. Okay. So तुमने gain क्या किया है? What have you gained? By doing all these things? And Buddha replied, actually, I have not gained, I have lost. Hmm? I'm sure you know, right? Many of you know this. Yeah? किसी को बताना है? Do you know this? He said that, yes, I have lost anger, I have lost negative thoughts, I have lost because हमको लगता है कि रियल फ्रीडम है कि हम जैसे चाहे वैसे हम जीना चाहे, जीने, मुझे कोई न रोके, कोई कुछ न बोले, और मैं जैसे चाहूं वैसा जीऊं, एंड ऑल दीज थिंग्स. हाँ, तो आपको बोलेगा कि कॉफी, नहीं, कॉफी तो मैं पीऊंगा ही, क्योंकि ये मेरा फ्रीडम, दिस इज माई राइट. बट देखो, तुम कैसे, यू आर एक्चुअली इन प्रिजन. यू आर कॉफी हैज मेड यू इट्स प्रिजनर. हाँ. लेकिन हम इसको रियल फ्रीडम बोलते हैं. रियल फ्रीडम इज दैट व्हेन जो भी चीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, विच इज नॉट मेकिंग मी हैप्पी, एंड आई कैन लेट गो. दैट इज रियल फ्रीडम, friends. And this meditation helps us to get into this real freedom. Mindfulness helps us to get thoughts, because right just before starting, and I know one of my of you really go through, and most of you will be having a lot of these, ये दिमाग बहुत चलता रहता है, रेस्टलेस रेस्टलेस स्ट्रेस. आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि आपको लग रहा है कि यही है जीवन. बट ये फ्रीडम नहीं है, फ्रेंड्स. दिमाग बार बार हमको लगता है कि दिमाग है इसीलिए मैं हूं.
ना, हमको लगता है ना, हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम कितना सोचते हैं, देखो। बट सोचो तभी जब जरूरत हो, उसके बाद ऐसा बना लो अपना जीवन ताकि वो सोच को आप बंद करके साइड पे रख सको। एंड दीज आर द टेक्निक्स टू एंश्योर दैट। एंड फ्रेंड्स, द मोर यू विल सी, थिंकिंग इज सच अ थिंग, वो जो हमेशा हमारा जो जो हम देना चाहते हैं एफर्ट और वट एवर, वो हाफ हो जाता है, because it reduces our efficiency. When we are thinking too much, then our efficiency goes down. We cannot be that efficient. हाँ, इसलिए थिंकिंग को हमें बंद करना है फ्रेंड्स। इवन देखो, मेडिटेशन भी हम कर रहे हैं टू डू व्हाट, ओनली टू मेक श्योर दैट वी स्टॉप दिस थिंकिंग प्रोसेस। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, राइट? वन ऑफ द टेक्निक आई टोल्ड यू इज बी विद द ब्रेथ। अनदर इज माइंडफुल। फ्रेंड्स, जो भी कर रहे हो ना, इतने माइंडफुली करो कि तुम्हारा दिमाग ही नहीं आ पाए। As for example, if you are cooking, cook so mindfully that you have become one with the cooking, कि तुम्हारा दिमाग बॉस ने क्या बोला, उसने क्या किया, इसने क्या किया, वो नहीं आए। ओके, अगर वो भी नहीं काम कर रहा है, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज माई स्टार्स आर लाइक दैट, दैट I have to weigh, because I know techniques, so I start using techniques and everything, that वो भी नहीं काम कर रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग चल रहा है, तो आपको फिर ब्रेथ के साथ रहना है। ब्रेथ के साथ एवरी मोमेंट ऑफ द डे, इवन काम करते वक्त भी बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, दिमाग बहुत जा रहा है, मेक ब्रेथ योर बेस्ट फ्रेंड। स्टार्ट ब्रीदिंग, वो जो अवेयरनेस ब्रीदिंग बोलते हैं ना, कैसे आपका ब्रेथ अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। बिकॉज देखो, दो चीज हम एक साथ में नहीं कर पाते, राइट? हम हमारा दिमाग ऐसा है कि दो चीज वो मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता है। वो या तो ब्रेथ के साथ रहेगा, या तो थॉट के साथ रहेगा। जब हम ब्रेथ के साथ रहते हैं ना, तो हम थॉट के साथ नहीं रह पाते। अगर रहते भी है, वो हम सिर्फ विटनेस स्टेट में उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको अपना नहीं बना के सफर नहीं करते रहते। Okay, did you get me? So these are some small techniques to ensure that you are not going into anxiety by thinking too much for no reason. Okay, anybody has any question in this? ऑफिस में होता है ना, जेंटल ब्रीदिंग, काम कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, देख रहे हो दिमाग बहुत ज्यादा आ रहा है, सिर्फ जेंटल ब्रीदिंग। इतना जेंटल ब्रीदिंग कि आप काम भी कर पाओगे, और वो आपका ब्रेथ भी चलता रहेगा, फोकस करते रहोगे। हम्म Okay. Anything, even walking, walking can be a very mindful walk. When you go out for walks, try to see the trees, the green. हम क्या करते हैं, वॉक करने के टाइम में हम क्या करते हैं, हम हेडफोन लगा लेते हैं, और हम एकदम अपने आप को सोचते हैं कि वाह, बिजी रखना है, बिजी। हमारा मेंटेलिटी ऐसा हो गया है कि कुछ नहीं कर रहे हैं मीन्स कुछ तो करना है, बिजी तो रखना है अपने दिमाग को तो इसलिए हम और ज्यादा स्ट्रेस पे चले जाते हैं। ओके, तो जब वॉक पे जाओ, वॉक ही करो। देखो, जैसे अपना पैर कैसे आप रख रहे हो, हाथ कैसे चल रहा है, आपका बॉडी कैसे मूव हो रहा है, एवरी यू शुड फील योर बॉडी व्हेन यू आर वॉकिंग। यू शुड फील द एयर, सी फील हाउ द एयर इज फीलिंग ऑन योर फेस। सो तब हमारा क्या होगा, स्लोली स्लोली वी विल डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम द थॉट्स। वी विल ओनली फोकस, राइट? माइंडफुल हो जाते हैं, हमें मजा आने लगता है सब कुछ जो कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता शांत हो जाता है। ओके, so then friends, the next thing that I wanted to talk about is